Hello students, I am Niyati Chauhan, Assistant Professor at LJ Institute of Engineering and Technology. In today's session, I will explain Level 1, Level 2, Level 3 and Level 4 in automation and also explain low level task and higher level task. So let's see. In chapter 1, sometimes in GTU, question can be asked, explain level 1, 2, 3 and 4 in automation in 7 marks, and also can be asked, explain DCS structure, right? So both questions have a same answer. Let's see answer. In DCS, actual command and data topology of system can be divided in two parts. Number 1, hierarchical structures, and number 2, hierarchical structure. Okay. Hier- Hierarchical structures you can see in this diagram, right? Data can be sent in sequence form. In hierarchical structure, you can see data is not sending in sequence form, right? This input can be sent signal to direct last level. Okay. So in hierarchical structure, signal can be sent in any order. First see hierarchical structures. These have distinct command, distinct that means alag, different. These have distinct command and data paths such that each element receives command from the back level and send information the level above it. That means in hierarchical structure we have a divided all tasks in small parts, right? So from back level matlab कि last level data can we will send in its upper level and this data sent in again upper level. So data can be sent in sequence form. Number 2, hierarchical structure. This structure have various control elements within overall system and have an equal priority within the distributed environment. That means in this structure various control elements are available, so signal can be sent in priority base, right? अगर लास्ट सिग्नल लास्ट में भेजना है, अगर प्रायोरिटी में अगर पहले भेजने को बोला है तो दैट इज सीक्वेंस इज नॉट मैटर इन दिस स्ट्रक्चर, राइट? सो लास्ट सिग्नल को भी हम पहले सेंड कर सकते हैं in this structure. It is more flexible than hierarchical structure, but there are problem of communication. Hierarchical structure से तो reliable है, but communication में problem होता है, right? So इसीलिए कभी ये structure का use नहीं करते हैं. In DCS, we are always use hierarchical structure. Okay, so in DCS, we will see hierarchical structure. Let's see some basic functions
of different levels. So let's see. At first place, there are transducers and controller installed in the close proximity to the process. मतलब पहले जगह पे हम ट्रांसड्यूसर्स एंड कंट्रोलर को लगाते हैं. The input output parameters are communicated to the next level of controller placed in control room. फिर जो इनपुट आउटपुट है वो हम कंट्रोलर रूम में जहाँ पे कंट्रोलर लगाया हुआ है वहाँ पे हम उसको कम्युनिकेट करते हैं. Then monitoring is done by supervisory control, which is at the next level in the hierarchy. Right? फिर कंट्रोल रूम के बाद सुपरवाइजरी लेवल आता है. राइट, जो मॉनिटर करता है पूरी प्रोसेस को. फिर सुपरवाइजर के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है मैनेजमेंट लेवल. मैनेजमेंट लेवल विच इज at the highest level in the hierarchy manages, coordinates the entire system for smooth functioning of the same. मतलब फर्स्ट लेवल पे ट्रांसड्यूसर एंड कंट्रोलर है. उसके बाद नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे हम इनपुट आउटपुट का कनेक्शन करते हैं, वो कंट्रोल रूम के साथ कम्युनिकेट होता है. उसके बाद सुपरवाइजरी कंट्रोल आता है. सुपरवाइजरी कंट्रोल के बाद मैनेजमेंट लेवल आता है. ओके, सो मोस्ट कॉमनली used DCS structure is hierarchical structure as shown in next page. You can see here one hierarchical structure is shown, right? In this structure you can see level 1A, level 1B, right, and level 2. आगे हमने जो भी थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें लेवल 2 तक ही था. ओके, मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर की. ओके, फिर कंप्यूटराइज्ड सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, राइट. तो वो थियरी में भी 2 लेवल तक ही था. बट एग्जाम में अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि एक्सप्लेन 4 लेवल्स, राइट, so you have to draw this diagram and explain this diagram very well. Okay, so let's see. In this diagram you can see this is our process. Process input goes to specialized dedicated digital controller, right, and another signal goes to direct digital control level. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिग्नल है स्पेशलाइज्ड जो भी कंट्रोलर है डेडिकेटेड, वहाँ पे एक सिग्नल जा रहा है एंड दूसरा सिग्नल है वो डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल लेवल में जा रहा है. फिर स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर का जो सिग्नल है वो डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल में मैंने सेंड किया. ओके, फिर वो सिग्नल ऑपरेटर्स के कंसोल में गया. अगर यहाँ पे ऑपरेटर को कुछ डेटा चेंज करना है तो वो क्लोज लूप थ्रू वापस से वो डेटा चेक करेगा कि भाई सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग है. अगर नहीं है तो वो सेट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक भी हमने लगाया है, राइट. अगर सिग्नल
स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर के रिलेटेड है तो सिग्नल यहाँ पे जाएगा और फिर स्पेशलाइज्ड से प्रोसेस में जाएगा। अगर सिग्नल स्पेशलाइज्ड कंट्रोलर का नहीं है तो वो सिग्नल यहाँ पे डायरेक्टली डिजिटल कंट्रोल लेवल से प्रोसेस में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे लिखा है कंट्रोल कंप्यूटेशन, राइट। मतलब जो भी सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो यहाँ पे सेट करके वापस सिग्नल भेजेगा। तो कंट्रोल कंप्यूटेशन में ऑपरेटर्स है वो सिग्नल अगर सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वापस भेजेगा। कंट्रोल एनफोर्समेंट, उसका मतलब क्या हुआ कि जो काम करवाना है, राइट, तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए, राइट। इतना टारगेट है तो वो टारगेट के अकॉर्डिंग भी काम करवाना पड़ता है, राइट। तो वो लेवल का वर्क भी यहाँ पे ही आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल से सिग्नल जाएगा लेवल 2 में। लेवल 2 इज सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल, राइट। यहाँ पे ये सिग्नल सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल में गया एंड फ्रॉम सुपरवाइजरी कंट्रोल सिग्नल गोज टू एंड सुपरवाइजर कंसोल। ये सुपरवाइजर कंसोल है। कंसोल दैट मीन्स क्या कि जो कुछ इनपुट दे सकते हैं, तो इनपुट देने के लिए कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप तो कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे उनका डेस्क होता है कंसोल में। तो वो कुछ भी डेटा इजीली इनपुट करके सेंड कर सकते हैं। सो सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल से डेटा सुपरवाइजर कंसोल में गया, ठीक है। अगर वो सुपरवाइजर को कुछ डेटा चेंज करना है तो वो वापस से फीडबैक देगा। फीडबैक थ्रू डेटा डायरेक्टली प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। अगेन आई से यू, अगर उसको कुछ चेंज करना है तो फीडबैक देगा वो सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल में एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल से डेटा डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल में आया एंड डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल से प्रोसेस में डेटा जाएगा। अगर स्पेशलाइज्ड में चेंज करना है तो सिग्नल गोज टू इन स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड डिजिटल कंट्रोलर। फिर सुपरवाइजर कंट्रोल लेवल communication with other direct control, right, and level system means यहाँ पे जो भी कंट्रोल करना है, राइट, सुपरवाइजर का काम है मॉनिटर करने का, तो वो कम्युनिकेट भी करेगा। अगर कोई दूसरे डायरेक्ट कंट्रोलर लगा है, कुछ लेवल सिस्टम है, तो उसके साथ भी वो सिग्नल यहाँ पे सुपरवाइजरी कंट्रोल लेवल में सेंड करेगा। लेवल 2 एंड लेवल 3 फॉर सुपरवाइजर्स कंसोल, राइट, मतलब सुपरवाइजर यहाँ पे ऑपरेट करेगा सिस्टम। सो फ्रॉम लेवल 2 सिग्नल गोज टू इन इंटर एरिया कोऑर्डिनेशन, राइट। सो फ्रॉम इंटर एरिया कोऑर्डिनेशन signal goes to in a supervisor's console, right. If supervisor want to change some data, then feedback give to inter area coordination and give signal to supervisory control level, right. And from supervisory control signal goes to indirect digital and from direct digital to process. Here, inter-area coordination for communication with supervisory level and management level, right? Here, from level 3, uh, we can also communicate with supervisor and also communicate with
management. Okay, so from inter-area coordination, signal goes to production scheduling and operational management, right? And operational management, signal goes to operational production supervisor, right? And if supervisor want to change some data, then give signal means give feedback to production scheduling, operational and management. Okay, and this signal return to intercoordination area and then continue all path, right? Then production scheduling and operation management, signal goes to management information level, right? And from management information level to signal goes to data presentation. And here whenever operator want to change some data, right, then give feedback to whole system, right? So and in this level sales and order, that means प्रोडक्शन का जो भी ऑर्डर है या कुछ भी सेल्स करना है तो वो इंफॉर्मेशन ये लेवल से मिल सकती है, राइट? सो सिंपल वी विल अंडरस्टैंड अगेन दिस ब्लॉक डायग्राम. देखो, कोई एक प्लांट चल रहा है, कोई प्लांट में प्रोसेस चल रही है. ओके, सो प्रोसेस में यहाँ पे प्लांट में सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स लगाया हुआ होगा, मोटर्स होगी, राइट? उसके बाद कंट्रोलर, मतलब कि जो भी पीएलसी है, माइक्रो कंट्रोलर है, कोई भी हम कंट्रोलर लगा सकते हैं. कोई पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हमें जो लगाना पड़ता है कंट्रोलर, डेडिकेटेड कंट्रोलर भी लगाना पड़ता है. तो स्पेशलाइज्ड डिजिटल कंट्रोलर, वो कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे. फिर दूसरा डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल लेवल, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो यू कैन सी हियर इन इन दिस लेवल कंट्रोलर का जो भी कुछ चेंज करना है वो ऑपरेटर यहाँ पे चेंज करेगा. फिर उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर, मतलब जो भी ऑपरेटर ने कुछ चेंज किया, राइट, तो वो डेटा सुपरवाइजर मतलब मॉनिटर करेगा, अभी प्रोसेस बराबर चल रही है, प्रोडक्शन बराबर चल रहा है, राइट. फिर प्रोडक्शन का उसने देखा, राइट. फिर उसके बाद थर्ड लेवल में मतलब सेंटर लेवल, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है सुपरवाइजर का और जो मैनेजमेंट है उसका, कि भाई प्रोडक्शन का वो शेड्यूल बनाता है, प्रोडक्शन अभी कितना बाकी है, राइट. तो वो ये वाला लेवल है, राइट. फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे सेल्स कितना हुआ, कितने ऑर्डर आए हैं, तो वो सब डेटा यहाँ पे भेजेगा, राइट. फिर वो शेड्यूल बनाएगा कि भाई अभी कितना बाकी है तो जल्दी से खत्म करो, फिर नया अभी ऑर्डर आया है, राइट. तो वो किसको भेजेगा, ये वाले लेवल को, मतलब ये सुपरवाइजर के ऊपर दूसरा सुपरवाइजर होगा, ये सुपरवाइजर वो कोऑर्डिनेट करेगा. ये सुपरवाइजर का काम है कि प्रोसेस चल रही है कि नहीं, राइट. सो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड. If you have any doubt in this level, you can ask me. Next, the function of each level is listed below. Level 0, field level. This level comprises of the basic field instruments like sensors, transmitters, etc. राइट. मतलब कि ये लेवल में सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स, ट्रांसड्यूसर्स वो सब होते हैं फील्ड लेवल में, विच आर directly connected to the process, or we can say give the information about the actual process, right.
तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि भाई प्रोसेस एक्चुअल में कैसे चल रही है. नेक्स्ट लेवल, लेवल 1, डायरेक्ट प्रोसेस कंट्रोल. This level handles the following functions: data acquisition, data check, plant monitoring, open and closed loop control and reporting. मतलब कि जो डायरेक्ट प्रोसेस कंट्रोल है, जो लेवल 1, वहाँ पे डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं, प्लांट मॉनिटरिंग, ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग. This level give reporting to next level. 1A covers contact with plant process. राइट, जो 1A लेवल 1A था वो प्लांट प्रोसेस के साथ कांटेक्ट में था. एंड लेवल 1B कांटेक्ट विथ ऑपरेटर्स console. लेवल 2 plant supervisory control. This level handle following functions: plant performance monitoring, plant coordination, optimal process control. ऑप्टिमल डेट मीन्स उसका मतलब ये होता है कि बेस्ट, जो बेस्ट प्रोसेस कंट्रोल है वो. एंड एडेप्टिव मीन्स कि जो कंफर्टेबल है, राइट, अनुकूल, कंफर्टेबल कंट्रोल. एंड फेलियर डिटेक्शन मतलब कुछ भी उसको ऐसा लग रहा है कि सिस्टम फेल हो रही है तो वो सब वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करेगा, राइट. नेक्स्ट लेवल 3, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल. This level handles the following functions: production dispatching, inventory control, production supervision, production rescheduling, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, राइट. तो थर्ड लेवल पे प्रोडक्शन का डिस्पैच मतलब प्रोडक्शन हो गया है तो वो डिस्पैच करने का काम, राइट, कि होगा डिस्पैच कि नेक्स्ट डे होगा. इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट, इन्वेंट्री मतलब कि लिस्ट, जो यादी होती है वो, राइट. प्रोडक्शन सुपरविजन, प्रोडक्शन रीशेड्यूलिंग एंड प्रोडक्शन रिपोर्टिंग. Level 4, plant management. This level handles the following functions: market and customer analysis, मतलब मार्केट में वो जाते हैं एंड कस्टमर को कैसी प्रोडक्ट चाहिए वो सबका एनालिसिस करते हैं, राइट. अगर कुछ चेंज करना है तो वो रिपोर्ट आगे देते हैं कि भाई ये तरीके से नहीं, कस्टमर को इस तरीके से प्रोडक्ट चाहिए. Orders and sales statistics, capacity and order balance, order dispatching, right, production planning, ओके, कि अभी कितना प्रोडक्शन बाकी है तो ऑर्डर इतना आया है तो अभी नेक्स्ट के लिए प्रोडक्शन चालू कर दो, तो प्रोडक्शन प्लानिंग, टर्म्स सुपरविजन एंड फाइनेंशियल सर्वे. ठीक है, जो फाइनेंशियली जो प्रॉफिट जो लॉस होता है वो सब मैनेजमेंट का वर्क ये लेवल पे होता है. नेक्स्ट 4A कवर्स कॉन्टेक्ट विथ द प्लांट शेड्यूलिंग एटसेट्रा, राइट. 4A जो है वो कवर करता है प्लांट के साथ, मतलब जो उसका कॉन्टेक्ट है वो डायरेक्टली प्लांट के साथ होता है, राइट, कि अभी शेड्यूल बनाए नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए, राइट, कितना बाकी है तो वो वर्क करता है 4A. एंड लेवल 4B द कॉन्टेक्ट विथ अपर मैनेजमेंट, राइट, मीन्स जो लेवल 4B है वो अपर मैनेजमेंट के साथ
वर्क करता है, सेंड इंफॉर्मेशन टू देम. Sometime in exam, question can be asked low level tasks. Low level task, that means level 0, level 1 tasks are known as low level task. High level task, level 2, level 3 and level 4 tasks are known as higher level tasks. In exam, if you have asked explain low level task, then you have to write down for level 0 and level 1 task, right? And asked for high level task, then write down for level 2, level 3 and level 4. Okay, thank you. And at last, see question bank, right? See, this is our question bank. I have started chapter 1. Okay, so you can see in chapter 1 we have completed explain early computer system, direct digital control, right? In this question you have to draw block diagram of early computer system, right? And also draw block diagram of direct digital control. आपको याद है अर्ली कंप्यूटर सिस्टम में मैंने दो बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. एंड थर्ड वन डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल का. एंड दिस क्वेश्चन सी क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम्स नंबर 1 डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. In early computer system we have divided in three parts, so two parts write down in this question. Okay, and last question, explain level 1 2 3 4a and 4b automation in 7 marks. Today I have discussed this question, right? And uh, explain overall task detail task listing, right? ओवरऑल टास्क मतलब जो सारे टास्क है लेवल 1 के, लेवल 2 के, वो सब आपको लिखने हैं. एंड ओवरऑल टास्क में लो लेवल का टास्क एंड हायर लेवल का टास्क दोनों आ गया, राइट? तो आपको आंसर में सारे लेवल्स लिखने हैं, राइट? एंड hierarchical control, hierarchical computer system for large manufacturing process. So आज जो मैंने डायग्राम चलाया ना वो 4 लेवल का, राइट? जिसमें 6 ब्लॉक थे, पर जो हायरार्किकल के लेवल्स थे वो 4 थे. तो हायरार्किकल कंप्यूटर सिस्टम में जो उसका लार्ज प्रोसेसिंग का डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसका आंसर ये आएगा. यू कैन सी इन चैप्टर 1 many questions are repeated. Okay, so write down all questions and all answers in your notebook. Okay, if you have any query then you can ask me. Within 1 or 2 days write down all chapters, right? Means all questions, right? Okay, thank you.